Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel once again. So here I am with another chapter and another sets of MCQs. Today we are starting with the chapter 5 standard 12. Again 10 important MCQs we will discuss in this video. The first question is a gamete normally contains one allele of a gene, all alleles of a gene, two alleles of a gene and many alleles of a gene. तो आपको पता है generally there are only two alleles of a gene. So suppose this is an individual and if this individual will make gametes, there will be two types of gametes. 50% gametes will have capital T and 50% gametes will have small t, recessive character. So it is one allele of a gene जो बताता है purity of gamete. So this is the first. Next question. The ratio of 9:3:3:1 is due to independent assortment of genes, segregation of characters, crossing over of chromosomes, homologous pairing between the chromosomes. So पहली बात तो 9:3:3:1 जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का phenotype है. अब ये जो है इसमें 9 and 1 will show this character. They will show dominating and this will be recessive. Both alleles will be recessive. ये है parental character. Due to independent assortment, we are getting this recombination. Capital R with small y, small r with capital Y. So, this is because of independent assortment of genes, which says that capital R or any dominating allele can go with dominating or recessive allele of the other gene. Same way, recessive can go with dominating or recessive allele of other gene. So it is independent assortment of genes. Next question is, in honeybees, females are having मीन्स फीमेल जो है वो हेप्लॉइड या डिप्लॉइड है या उनमें कितने क्रोमोसोम्स हैं एंड सेम विद द मेल्स. तो क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो फीमेल्स होती हैं दोज आर डिप्लॉइड्स हैविंग 32 क्रोमोसोम्स एंड जो मेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं हैविंग 16 क्रोमोसोम्स. सो हियर सुटेबल ऑप्शन विल बी फर्स्ट इज डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड के दो ऑप्शन हो गए. क्रोमोसोम 32 तो ये वाला इग्नोर करना है एंड C1 इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि फीमेल डिप्लॉइड विथ 32, हेप्लॉइड मेल्स विथ 16 क्रोमोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 4. दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन और ये रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम्स में. सो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. A color-blind man is this, has a color-blind sister and a normal brother. So, color-blind is a sex-linked recessive disorder. So, what is genotype of father and mother? Now, I can tell you one way to understand it. तो सबसे पहले नॉर्मल ब्रदर को लेते हैं. तो नॉर्मल ब्रदर में Y स्पर्म है एंड X ओवा है. सो ऑब्वियसली मदर से एक नॉर्मल X आया है और फादर से Y आया है. नाउ इफ दिस इज द मेल में अगेन यू कैन सी Y है तो ऑब्वियसली वो फादर से आया है और ये जो X है ये मदर से ही आया होगा. सो यू कैन सी दिस इज कैरियर मदर. एंड नाउ दिस इज द डॉटर. सिस्टर के केस में क्या है, दोनों ही कलर ब्लाइंड मतलब एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है. तो ऑब्वियसली एक एबनॉर्मल मदर से आया है, वी अग्री, तो दूसरा एक्स स्पर्म का होगा. सो फादर विल बी हैविंग एबनॉर्मल कलर ब्लाइंड. ठीक है, फादर इज अ कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर. सो द ऑप्शन विल बी दिस ऑप्शन डी. ओके, तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी.
सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करिए और ये ऑप्शन आपको ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफिलिक मैन मैरीज अ कैरियर विमेन। तो हीमोफिलिक मैन है, अगेन इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोफिलिक है तो दिस इज द मैन and the carrier woman means only one chromosome, X chromosome will be abnormal and other will be normal. Percentage of daughters becoming hemophilic shall be. तो डॉटर का हीमोफिलिक होने के कितने चांसेस होते हैं? सो लेट्स ड्रॉ इट, XH and Y. We will make a Punnett square. It's a simple one. एंड यहाँ पे हम जो ओवा के दो टाइप्स हैं दैट वी आर मेंशनिंग हियर. दिस कैटेगरी इज फॉर स्पर्म्स एंड दिस वन इज फॉर ओवा. सो हियर यू सी XH hemophilic daughter, hemophilic son, carrier daughter and normal son. So what you can see here, जितने भी daughters हैं उसमें से 50% is normal and 50% is carrier. So percentage क्या हुआ, it is 50%. So आप पुनेट स्क्वायर करके easily इसे solve कर सकते हैं. Next question, a colorblind daughter is born in case of, colorblind daughter मतलब इट इज अगेन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और ये कलर ब्लाइंड डॉटर है मीन्स शी इज हैविंग दिस कंडीशन. अब ये कंडीशन कब आएगी, कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर. नॉर्मल फादर मीन्स दिस कंडीशन एंड कलर ब्लाइंड मदर इज दिस कंडीशन. नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉर्मल मदर दिस एंड कलर ब्लाइंड फादर दिस कंडीशन. कैरियर मदर this condition and colorblind father this condition, same condition. Carrier mother this condition and normal father this condition. अब आप समझो कि बच्चे में the daughter is having both the abnormal X chromosome. It means what कि father भी abnormally होगा. So These three are the option. हमने इस ऑप्शन को इग्नोर करना है. नेक्स्ट इज जो मदर है, मदर कैन बी कैरियर, सॉरी दे नॉर्मल फादर है, सो दिस इज ऑल्सो इग्नोर्ड. ये दोनों में से देखते हैं. अब मदर जो है उसमें ये कंडीशन आती है, मतलब मदर आइदर मदर विल बी हैविंग कलर ब्लाइंड और शी विल बी कैरियर. तो इन दोनों ऑप्शन में से नॉर्मल नहीं हो सकता, तो इट विल बी कलर ब्लाइंड. सो दिस इज द राइट ऑप्शन कि मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड. सेवेंथ एमसीक्यू इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज. इन चारों में से आपको इनकरेक्ट चूज करना है. सो सटन एंड बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन. यस, ये तो करेक्ट है. मैं छोटा सा टिक लगा रही हूं इसके लिए. ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर could be grown on simple synthetic medium in laboratory. Yes, जो मॉर्गन हंट करते थे. Mendelian disorder are mainly determined by alteration or mutation in the single gene. Yes. Substitution of valine by glutamic acid in the 6th position of the beta globin chain, the hemoglobin molecule cause sickle cell anemia. तो ये जो है ये रॉन्ग है बिकॉज ग्लूटामिक एसिड इज सब्सटीट्यूटेड बाय वेलिन. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स फॉर वेलिन. सो इसमें ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन उसे डिस्प्लेस करता है. सो the triplet code for valine is GUG. This is the direct question और ये आपके 5th चैप्टर में डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, तो आप उसे भी ध्यान से देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन का
बेस्ट एग्जाम्पल GUG जो अभी हमने सॉल्व किया उसी से रिलेटेड है. सो डाउन सिंड्रोम इज नॉट वेयर म्यूटेशन इज हैपनिंग, इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है. सिकल सेल अनेमिया, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. थैलेसेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो है इस केस में इट इज द जीन्स विच आर बीइंग डिस्टर्ब. तो हमारा ऑप्शन विल बी बी. लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो टर्नर सिंड्रोम नहीं है. ऊपर तीनों जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है बिकॉज दे आर हैविंग प्रॉब्लम इन द जीन्स. वेयर एज टर्नर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का प्रॉब्लम है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल इंक्रीज और डिक्रीज. सो इट इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो जिसमें हमने 5th चैप्टर के 10 MCQ सॉल्व किए. वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे चैप्टर के 10 MCQ सॉल्व करेंगे. इस तरीके से अगर मैं सारे चैप्टर्स के 10 MCQs लेके आती हूँ तो अच्छा खासा कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा फॉर नीट. बट दिस इज नॉट इनफ. You have to keep on solving many questions of each chapter and keep on revising those MCQs too. So see you in my next video. Till then, keep learning, take care and be safe.